A NEET compromise. Several facets of NEET 2024 have elicited significant public outcry. First was the extension of the registration window twist after the month-long registration window has closed, which it was argued provided unfair advantage to some students. In fact, it was during this extension period that some of the toppers had registered. This was followed by the unexpected advancement of the result date from June 14 to June 4, the day general election results would be announced, leading many of suspect that the date was chosen to deflect attention from the irregularities that were bound to surface. नीट में अनियमितताएं। नीट 2024 को लेकर कई ऐसे पहलू सामने आए जिन्होंने लोगों में खासा आक्रोश पैदा कर दिया। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन विंडो को बढ़ाया गया। 1 महीने तक चली पंजीकरण प्रक्रिया बंद होने के बाद इसे 2 बार विस्तारित किया गया। इससे कुछ छात्रों को अनुचित लाभ मिलने की आशंका जताई गई। दरअसल यह समयावधि बढ़ने के दौरान ही कुछ टॉपर्स ने पंजीकरण कराया था, फिर एकदम अप्रत्याशित ढंग से 14 जून के बजाय 4 जून को ही नतीजे घोषित कर दिए गए, जिस दिन आम चुनाव के नतीजे भी आए थे। इस पर कई लोगों ने संदेह जताया कि यह तारीख प्रवेश परीक्षा की अनियमितताओं से ध्यान भटकाने के लिए चुनी गई। The unusually high number of toppers, 6 of whom had seat numbers in the same sequence and took the test from a particular exam center in Bahadurgarh, Haryana, is being seen as another anomaly. Incidentally, in center run by the wife of the local BJP youth wing chief was plagued by issues on test day itself, with a mix-up in question papers leading to delays. Besides, some of these toppers did not do well in their board exam, casting doubt over their NEET success. Toppers की संख्या असामान्य ढंग से काफी ज्यादा हो गई, जिनमें से 6 की सीट संख्या एक ही क्रम में थी और उन्होंने हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित एक विशेष परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दी थी। इसे एक बड़ी विसंगति माना गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्थानीय भाजपा युवा इकाई प्रमुख की पत्नी की तरफ से संचालित इस केंद्र में परीक्षा के दिन ही काफी गफलत हुई थी और गलत प्रश्न पत्र की वजह से परीक्षा शुरू होने में काफी देर हुई। इसके अलावा परीक्षा में टॉप करने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिससे उनके नीट में इतने अच्छे नंबर आने को लेकर संदेह गहरा गया। The arbitrary awarding of grace marks by the NTA further complicated the situation. These were given to 1,563 students who allegedly lost time during the examination for various reasons or wrote wrong answers due to a printing error in an earlier version of a textbook. Following petitions in the Supreme Court, the NTA cancelled the marks and organized a retest for the 1,563 students, but only 52% took it. एनटीए की तरफ से छात्रों को मनमाने ढंग से ग्रेस मार्क्स देने से स्थिति और जटिल हो गई। कुल 1,563 छात्रों को इस आधार पर अतिरिक्त नंबर दिए गए कि कथित तौर पर विभिन्न कारणों से परीक्षा के दौरान उनका समय बर्बाद हुआ था या फिर पाठ्यपुस्तक के पुराने संस्करण में मुद्रण संबंधी त्रुटि के कारण उन्होंने गलत उत्तर लिखे। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई तो एनटीए ने ग्रेस मार्क्स रद्द कर दी और 1,563 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की, लेकिन दोबारा परीक्षा के लिए इनमें से सिर्फ 52% छात्र ही पहुंचे। Irregularities were also reported in several states including Gujarat, Rajasthan and Bihar. Nearly 24 people have been arrested in Gujarat, Bihar and Maharashtra for alleged involvement in paper leaks or other malpractices. गुजरात, राजस्थान और बिहार सहित कई राज्यों में धांधली की जानकारी मिली है। गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र में पर्चा लीक या अन्य कदाचारों के आरोप में करीब 2 दर्जन लोगों को पकड़ा गया है। The controversy has also highlighted the suspected role of India's rupees 58,000 crore coaching industry in the manipulation of examinations. The alleged scam surfaced when students from Haryana, Bihar, Maharashtra, Jharkhand and Karnataka were found appearing for NEET at an obscure center in Godhra. There were 3 protagonists here: Roy Overseas, a Vadodara-based coaching institute managed by Parshuram Roy; Purushottam Sarma, the principal of Jai Jalram School in Godhra, which served as the exam center; and Tushar Bhatt, a teacher at the school who was also the designated deputy superintendent for the exam center. Involved in the cheating scandal would initially fill in the answers they knew, and once the answer key was released, the teachers would complete the remaining answers. The Gujarat police found that at least 26 students from across the country paid rupees 10 lakhs to rupees 66 lakh each to clear NEET. इस पूरे प्रकरण ने परीक्षाओं में धांधली कराने में देश भर के 58,000 करोड़ रुपए की कोचिंग उद्योग की संदिग्ध भूमिका को भी उजागर कर दिया है। कथित घोटाले को लेकर संदेह गहरा गया जब यह बात सामने आई कि हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक के कई छात्र नीट परीक्षा देने के लिए गोधरा के अनजाने से केंद्र में पहुंचे थे। इसके केंद्र में 3 पक्ष सक्रिय थे। बड़ोदरा में परशुराम रॉय की तरफ से संचालित कोचिंग संस्थान रॉय ओवरसीज, गोधरा स्थित जय जलराम स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा जिनका स्कूल परीक्षा केंद्र बना था, और स्कूल के एक शिक्षक तुषार भट्ट जो परीक्षा केंद्र के लिए नामित उपाधीक्षक भी थे।
धांधली को कुछ इस तर्ज पर अंजाम दिया गया कि पहले तो संबंधित छात्र उन सवालों के उत्तर लिखेंगे जो उन्हें आते हैं, फिर आंसर की जारी हो जाने के बाद बाकी उत्तरों को शिक्षक भरेंगे। गुजरात पुलिस ने पाया कि देश भर के कम से कम 26 छात्रों ने नीट पास करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 66 लाख रुपए तक का भुगतान किया। The NEET imbroglio. The NEET UG is a pen and paper common entrance examination for the entire country. This year, 23,33,297 students appeared for the examination, vying for 1,09,170 seats in 706 medical colleges. Of these, 55,905 seats are available in 386 government medical colleges. Here is the process and where the lapses and breaches possibly occurred, putting the whole exam under question. नीट परीक्षा की पहेली। नीट यूजी देश भर में कागज कलम से होने वाली साझा प्रवेश परीक्षा है। इस साल 706 मेडिकल कॉलेजों की 1,09,170 सीटों में दाखिले के लिए 23,33,297 छात्र परीक्षा में बैठे। इनमें से 55,905 सीटें ही 386 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में है। यहाँ हम बता रहे हैं इनकी प्रक्रिया और कहाँ कमियां रही और क्या उल्लंघन हुए जिससे यह पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई। फर्स्ट, question paper setting. Subject experts are asked to create a pool of questions which are then reviewed and categorized by experienced educators and examiners to ensure they meet the required standards of difficulty and relevance and cover the syllabus comprehensively. पहला, प्रश्न पत्र तैयार करना। विशेषज्ञों से सवालों का एक पूल तैयार करने को कहा जाता है जिसकी समीक्षा अनुभवी शिक्षाविद करते हैं और उन्हें वर्गीकृत करते हैं। यह ध्यान रखा जाता है कि सवाल कठिन और प्रासंगिक हो और सिलेबस के भीतर से ही हो। द प्रॉब्लम, द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर दिस टाइम वाज रेंडर्ड सस्पेक्ट बिकॉज एन आंसर वाज डीम्ड करेक्ट इवन थ्रू इट वाज रॉन्ग ओइंग टू फैक्चुअल एरर इन अ टेक्स्ट बुक एडिशन। ग्रेस मार्क्स वेयर अवार्डेड टू कंपनसेट दिस। समस्या, प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता को लेकर बहस हुई क्योंकि जो सही उत्तर था उसमें टेक्स्ट बुक संस्करण में तथ्यात्मक गलती थी। इस गलती के कारण ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब हम इस सेक्शन के दूसरे पड़ाव पे आते हैं जिसका नाम है वर्ड पावर। इनमें दिए गए प्रत्येक शब्द हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभप्रद हैं। तो हम पहले शब्दों को देखेंगे और उसके हिंदी अर्थ को याद करेंगे। हमारा पहला शब्द है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन मतलब मनगढ़ंत। फैब्रिकेशन मनगढ़ंत। विविफाई, पुनर्जीवित करना। विविफाई, पुनर्जीवित करना। मैग्नेट, मैग्नेट मतलब प्रभावशाली व्यक्ति। मैग्नेट, प्रभावशाली व्यक्ति। इम्प्रेग्नेबल, अपराजय, अखंडनीय। इम्प्रेग्नेबल, अपराजय, अखंडनीय। और हमारा अंतिम शब्द है सेंसर, निंदा। सेंसर, निंदा। अब इस सेक्शन का हमारा आखिरी पड़ाव है आइटम्स एंड फ्रेजेस। हम प्रत्येक आइटम्स एंड फ्रेजेस के हिंदी अर्थ को तो याद करेंगे ही, साथ साथ हम इसके एग्जाम्पल को भी देखते चलेंगे। हमारा पहला आइटम्स एंड फ्रेजेस है ब्यूल्ड ब्रिजेस। ब्यूल्ड ब्रिजेस दो विपरीत समूहों द्वारा आपस में सहयोग करने और एक दूसरे को समझने में मदद करना। दूसरा, कट लूज। कट लूज किसी व्यक्ति या समूह के प्रभाव या नियंत्रण में आना छोड़ देना। फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड वह व्यक्ति जो अच्छे समय में दोस्त की तरह व्यवहार करता हो पर बुरे समय में आपका साथ न देता हो। अगला, गेट अ रॉ डील। गेट अ रॉ डील मतलब यह सोचना कि आपके साथ भेदभाव किया गया हो या बुरा व्यवहार किया गया हो। अगला, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो आप सामान्य व्यवहार अपनाते हैं और जैसा चल रहा है चलने देते हैं। इसी तरह से आप सारे हिंदी अर्थों को याद करेंगे। थैंक यू।